Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study institutional representation of democracy. Learning port, universal adult franchise, elections, political parties, coalition governments. In the modern age, most of the states have a democratic form of government. People elect their representatives for a fixed time. They elect representatives run the government in accordance with the wishes of the people, and if they do not do so, people throw them out in the next election. The right to elect representative is called vote. People control the government through the right of vote. देखिए अब गवर्नमेंट कैसे होता है कि इलेक्शंस होते हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को रखते हैं, जिनको चाहते हैं उनको वोटिंग करते हैं, उनके लिए रखते हैं. अगर वो जैसा चाहते हैं ऐसा उनका रिप्रेजेंटेटिव्स उन्हें नहीं करके देती हैं तो नेक्स्ट वोट में वो उन्हें उनके रिप्रेजेंटेटिव के पोस्ट से हटा देते हैं. Okay, the system is termed as the democratic participation of the people. The participation of the people makes a system democratic in real sense. It becomes a government of the people, by the people and for the people. तो इसका real sense यही बन के आता है कि ये जो government है ये people के लिए है, उनके through है और उन्हीं के लिए है. Okay. In this chapter, we shall discuss the various institutions, forms and processes associated with democracy. Some are given us under. देखिए कुछ forms बताए गए हैं यहाँ पे. Universal adult franchise. The right to express one's choice by vote is called franchise. Almost all scholars admit that franchise should be granted to all the citizens without any distinction. This is called universal adult franchise. It is considered as the only basis of democracy. ओके देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात हो रही है यहाँ पे. फ्रेंचाइज का मतलब होता है एक पर्सन को जब तुम इक्वली ट्रीट करते हो, उसको वोटिंग का हक देते हो तो उसको फ्रेंचाइज कहते हैं. ओके तो हर जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबको ये हक मिलना चाहिए, कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है. ओके एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दैट द राइट टू वोट शुड बी गिवन टू ऑल द सिटीजन्स विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्लास और सेक्स. देयर शुड बी नो क्वालिफिकेशन ऑफ property, of education also. Only lunatics, minors, bankrupts, criminals and aliens who are deprived from right to vote. The age of adulthood differs from country to country. For instance, it is 16 in Austria, Cuba and Scotland 18 years, in India, Russia and England 21 years, in Singapore and in Malaysia. Okay, देखिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है कास्ट, क्रीड, सेक्स किसी के भी बेसिस पे. ओके नाउ अगर कोई क्रिमिनल है, ओके एलियन है, बैंकरप्ट है, इन जैसे लोगों के लिए ये अलाउड नहीं है. ओके एज अलग अलग जगहों पे अलग अलग रखी गई है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है. ऑस्ट्रिया में 16 है और यूके, स्कॉटलैंड 18 ईयर्स, इंडिया, रशिया, इंग्लैंड में 18 ईयर्स, 21 ईयर्स इन सिंगापुर. ओके नाउ रैशनल behind the universal adult franchise. There are strong grounds or rational behind the universal adult franchise. देखिए क्या क्या strong grounds हैं. It is based on political equality. Political equality पे ये based है. One person, one vote is now the acceptable principle in all democratic countries. The principle of equality holds that everybody, whether rich or poor, young or old, black or white, man or women, learned or illiterate, should have equal voice in democracy. मतलब सबको इक्वली ट्रीट करना है, चाहे वो रिच है, पुअर है, ब्लैक है, वाइट है, मैन है, विमेन है, या फिर पढ़ा लिखा है या फिर नहीं है. ओके इट एस्टैब्लिशेस अ ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. एक ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये लेके आता है. इफ डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, देन द एवरी सिटीजन मस्ट हैव द राइट टू वोट. ओके अगर ये लाइन इसको ये फॉलो करते हैं तो हर पर्सन को राइट टू वोट है. ओके It makes the government responsible to people. Government affects all and such it must be responsible to all. It is possible only when the right to vote is granted to all. देखिए गवर्नमेंट जो है ये अफेक्ट करता है हर चीज़ को. ओके ये रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ के लिए क्योंकि ये चला रहा है, तो ये पॉसिबल है कि हर इंसान को राइट टू वोट मिले. ओके थिंकिंग शॉर्ट. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन वन मैन वन वोट कॉन्सेप्ट. वाई ये आप खुद से करेंगे. इलेक्शंस इन एन indirect or representative democracy, people have a representative government. It is though
इलेक्शंस दैट पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स हु फॉर्म द गवर्नमेंट। देखिए ये पीपल्स के थ्रू ही है जो अपने इलेक्टेटिव्स जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके लिए वो वोट करते हैं, ओके, उनको आगे रखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्शंस इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में इलेक्शन के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं? इलेक्शंस में यही सारी चीजें होती है, वोटिंग करना, अपने रिप्रेजेंटेटिव को लेके आना। द मेन बेसिस ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी इज द कॉपरेशन ऑफ द पीपल विद द गवर्नमेंट। द पीपल आर गिवन द राइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट बाय यूजिंग देयर राइट ऑफ फ्रेंचाइज। देखिए जो मेन बेसिस है, मेन चीज है मॉडर्न डेमोक्रेसी के, वो ये है कि हर एक पर्सन के साथ कॉपरेट करना है, पर्सन को डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना है, ओके। नाउ हर एक पर्सन को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, फ्रेंचाइज के थ्रू, ओके। इट ऑल्सो जजेस द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। इफ द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट इज सेटिस्फैक्टरी द पीपल में again give the mandate of formation of the government to the same party, otherwise it may change the rulers। देखिए अगर जो लोग वोटिंग कर रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट जो है सेटिस्फैक्टरी है तो वो उन्हें ही वोट दे के दोबारा से सत्ता में लेके आते हैं, ओके। द इलेक्शंस क्रिएट पब्लिक इंटरेस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट इज लीगलाइज्ड बाय द पॉपुलर सपोर्ट। इलेक्शन जो है ये पब्लिक इंटरेस्ट कहीं ना कहीं क्रिएट करता है एडमिनिस्ट्रेशन में, और गवर्नमेंट जो है वो लीगली आगे बढ़ती है, ओके, पॉपुलर सपोर्ट मिलता है उन्हें। इट इज़ अ मीडियम ऑफ पीसफुल चेंज ऑफ गवर्नमेंट for the peaceful transfer of authority and to ensure people's confidence in the government, it is essential that elections should be free and fair. If people lose confidence in the election system, then democracy will collapse. देखिए अगर लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा डेमोक्रेसी में, इलेक्शन सिस्टम में, तो डेमोक्रेसी कोलैप्स हो जाएगी, डेमोक्रेसी सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। रीजंस फॉर अडॉप्शन ऑफ सीक्रेट बैलेट। इन अ सीक्रेट बैलेट the voter is free from pulls and pressures under the secret ballot system. It brings about desired changes but without any ill feeling and negative attitude. Okay, देखिए secret ballot की बात हो रही है जहाँ पे लोग वोटिंग करने के लिए जाते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं, उनको किसी चीज़ का डर नहीं होता, फियर नहीं होता, ओके, और वो कोई पुल प्रेशर्स कुछ नहीं होता उनके अंडर उस टाइम पे, ओके। अपने डिज़ायर जिसको भी वो देना चाहते हैं वोट, उसको वो दे सकते हैं, ओके। इलेक्शन प्रोसीजर। In a vast country like India, it is not easy to hold elections. Its preparations require sufficient time. As such, the Election Commission remains busy throughout the year in making arrangements for the same. The preparations of elections requires the preparation of electoral rolls. Okay, देखिए इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, उसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्शंस की प्रिपरेशंस के लिए पूरा साल लगता है, ओके। नाउ द नेम्स ऑफ ऑल द adults living in our territorial constituency are enrolled in one general electoral roll. electoral roll बनाए जाते हैं, जितने भी adult लोग हैं उन सबके names जो हैं उस roll में लिखे जाते हैं। Each state is divided into territorial constituencies in such a manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it shall be same throughout the state. देखिए throughout the state मतलब पूरे स्टेट में सेम होना चाहिए जो सीट्स अलॉट हुई हैं वो, और बाकी लोगों के जो नाम है पॉपुलेशन में वो, ओके। अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन डेट्स। एक्चुअल प्रोसेस ऑफ इलेक्शन स्टार्ट्स विद द अनाउंसमेंट ऑफ द डेट्स फॉर इलेक्शंस थ्रू अ नोटिफिकेशन। एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है इलेक्शन का, वो तब स्टार्ट होता है जब डेट्स की अनाउंसमेंट हो जाती है, ओके। फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स। After the date for election is declared, the candidates file the nomination papers to contest the election. Their theme are proposed and seconded by a fixed number of votes. They are also required to deposit a fixed amount of the security deposit. The returning officer scrutinizes the papers and allows the candidates to contest the elections if they are found in order. The candidates are given last chance to withdraw their names if they wish from the contest. Then the final list of the candidates is prepared. देखिए जो इलेक्शंस में खड़े हैं जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भी लिस्ट बनती है, ओके। उनके फिक्स्ड होते हैं नंबर्स, कुछ नंबर्स होते हैं उनके लिए फिक्स करने पड़ते हैं, ओके। वो लिस्ट जो फाइनल है वो लास्ट में निकाल के रखनी पड़ती है। तो उनके पास इतना टाइम होता है, उनको एक पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है कि अगर आपको अपना नेम विड्रॉ करना है तो आप कर सकते हो, उसके बाद जब ये फाइनल लिस्ट बन जाएगी उसके बाद आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, ओके।
Allotment of symbols. National parties have their permanent symbols. Other parties and independent candidates are also allotted symbols so that the voters can recognize the candidates easily. Okay, जो parties होती हैं उनके अपने अपने symbols भी होते हैं ताकि parties को easily recognize किया जा सके. Election propaganda. Intensive propaganda is carried out of the filing of nomination papers of the candidates. The political parties bring out their election manifestos. They stress upon the policies and programs and try to impress the voters. They periodicals and dailies public articles on the policies and programs of the various political parties. Okay, see, political parties जो होती हैं उनके जो elections होते हैं उसमें से वो स्ट्रेस करती हैं अपनी पॉलिसीज पे, प्रोग्राम्स पे, ताकि वो वोटर्स को इम्प्रेस कर सके. ठीक है, और जब वो वोटर्स को इम्प्रेस करेंगी तभी जाके उनको वोट्स भी मिलेंगे. ओके, द पार्टीज अट्रैक्ट द इलेक्टोरेट बाय होल्डिंग मीटिंग्स, प्रोसेशंस एंड डोर टू डोर कैनवेसिंग्स. ओके, देखिए पार्टीज किस तरीके से उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं. वो उनके जो भी मीटिंग्स होल्ड करती हैं, फर्स्टली डोर टू डोर जाके उनसे बात करती हैं. ओके, तो इंटरैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ओके, actual polling. On the fixed date, the polling starts. The voters are given ballot papers containing the names and the election symbols of the candidates contesting the election. Voting is held using a new electronic voting machine introduced in recent years, EVM. Okay, देखिए EVM एक voting machine होती है. उनको ballot papers दिए जाते हैं. उन ballot papers पे वो जिसको भी वोट करना चाहते हैं उसके लिए आगे बढ़ के उस मशीन में वोट करते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज काउंटिंग ऑफ द वोट्स. आफ्टर द पोलिंग टाइम इज ओवर, all the ballot boxes are sealed and sent to a central place for counting. On a fixed date, the counting takes place in the presence of the candidates and results are declared by the appropriate authority. देखिए, जब काउंटिंग खत्म हो जाती है, पोलिंग ऑफ वोट्स खत्म हो जाती है, उसके बाद उसकी काउंटिंग शुरू होती है. ओके, जो ईवीएम मशीन्स हैं उनको प्रॉपर्ली सील करके काउंटिंग के लिए उनके आगे भिजवाया जाता है. ओके, इलेक्शन petitions. If a candidate feels that irregularities have taken place or corrupt parties have been adopted by the winning candidate, he can file an election petition in the court for law. If the charges are proved, the election of the candidate is declared null and void and fresh elections take place in the constituency. देखिए, अगर किसी भी एक कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि जो काउंटिंग हुई है उसमें कहीं ना कहीं लोगों ने कुछ गलती की है या फिर मिस्टेकन हुआ है, तो उसको दोबारा से रिकंसिडर किया जा सकता है. वो कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं. अगर उनका केस जो है वो जीत जाते हैं तो दोबारा से इलेक्शंस कराए जाते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. लेट्स डू इट. इमेजिन दैट यू वर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ हेड बॉय गर्ल ऑफ योर स्कूल. What will be your policies and programs for the welfare of your school? ये आप खुद से करेंगे. Political parties. Elections and political parties are inseparable. Both from an integral part of democracy, a political party is a group of persons having the same political beliefs and ideology. A party's belief, policies and programs are contained on their election manifesto. All parties publicize their policies through newspapers, public meetings and other means like electronic media and try to create public opinion in their favor. Okay, देखिए, इलेक्शंस और पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं ये इनसेपरेबल है, मतलब इन्हें अलग नहीं किया जा सकता. दोनों की दोनों इंटीग्रल पार्ट हैं डेमोक्रेसी के. ओके, एक पार्टी का बिलीफ होता है पॉलिसीज प्रोग्राम्स का, ठीक है, जिसमें एक इलेक्शन मैनिफेस्टो हो. ओके, पब्लिक मीटिंग्स होती हैं. They play a vital role in democracy by educating people about important issues, whereas the ruling party tries to highlight the achievements of the government. देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, जो एजुकेटेड पीपल होते हैं डेमोक्रेसी में उनको इम्पोर्टेंट इश्यूज बताए जाते हैं. ओके, वहीं जो रूलिंग पार्टी होती है वो हाईलाइट करती है अचीवमेंट्स को कि हमने ये चीज़ किया है. ओके, हमने ये चीज़ बदल दी, हमारी ये अचीवमेंट्स हैं. इस तरीके की चीज़ें होती हैं. द ओपोजिशन पार्टीज क्रिटिसाइज द पॉलिसीज एंड मिस रूल ऑफ द गवर्नमेंट. वहीं ओपोजिशन पार्टी जो उनकी होती है वो जो भी चीज़ें बोली जाती हैं मिस रूल करने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट को. ओके, दे कन्वे द ग्रीवेंसेस एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट. ओके,
तो वो कन्वे करते हैं, जो भी एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट की तरफ कन्वे करते हैं. ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी. Express the wishes of the people. A democratic government suits the wishes of the people. It expresses the wishes of the people. देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है पॉलिटिकल पार्टीज की डेमोक्रेसी में कि अपनी विशेस को जो है एक्सप्रेस करना. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो विशेस को एक्सप्रेस करती है अपने लोगों के तरफ. ओके, इट क्रिएट्स पब्लिक ओपिनियन ऑन वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री. इट ऑल्सो क्रिएट्स इंटरेस्ट इन पीपल टूवर्ड्स नेशनल प्रॉब्लम्स. इन फैक्ट दीज इशूज आर वाइटल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. देखिए ये क्या क्रिएट करती है, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करती है वेरियस प्रॉब्लम्स में, कंट्री में जितनी जितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन सबके बारे में, और इंटरेस्ट भी क्रिएट करती है नेशनल प्रॉब्लम्स की तरफ. ओके, क्रिएट इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल activities. Political parties create the political interest in the country and educate the people. They bring order out of the chaos of the multitudes of voters. देखिए ये इंटरेस्ट क्रिएट करती है लोगों में ताकि वो अपने लोगों को एजुकेट कर सके, पढ़ा लिखा सके. Cooperation in government activities. Cooperation in every activity of the government is possible only due to the presence of political parties. They also contribute to the formation of public opinion by their efforts. Political parties are the foundation stone of a parliamentary government. देखिए कॉपरेशन मतलब कॉपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट में. ओके, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनकी कॉपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. वो कंट्रीब्यूट करते हैं पब्लिक ओपिनियंस में अपने एफर्ट्स को. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया. द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया इज वर्थ नोटिंग. इन्हें नोट करना ज़रूरी है. नाउ the number of political parties in India is very large. Many of them have a communal orientation. पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इंडिया में बहुत सारी हैं और उनके कॉम्युनल ओरिएंटेशन भी है. इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री. द प्रॉब्लम ऑफ इट्स वेरियस रीजन्स आर डिफरेंट, हैंस रीजनल पार्टीज आर फॉर्म टू सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स. देखिए इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, उनके प्रॉब्लम्स भी बहुत अलग अलग हैं और बहुत सारे हैं, इसलिए रीजनल पार्टीज़ बनी हैं उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए. Many political parties have similar aims. In India, about 1.5 dozen political parties believe in socialism. All of them claim to be real socialistic parties. देखिए बहुत सारे लोग हैं ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सोशलिज्म में बिलीव करती हैं और वो क्लेम करते हैं कि हम सोशलिस्टिक पार्टीज हैं. ओके, सिंस लॉन्ग देयर हैज़ बीन वन पार्टी डोमिनेंस एंड कोलिशन गवर्नमेंट्स आर अ रीसेंट डेवलपमेंट ओनली. Family dynastic rule exists in all the parties. Defection is an old practice. Though Anti-Defection Act of 1985 had banned defection, still some loopholes exist in this act which are used to topple the popularity elected government. Okay, देखिए जो फैमिलीज़ हैं, ओके, फैमिली डायनेस्टिक रूल्स है वो एग्जिस्ट करते हैं इन पार्टीज़ में, और डिफेक्शन जो है बहुत ज़्यादा पुरानी प्रैक्टिस है, शुरू से होती आई है. ओके, इसके थ्रू 1985 में इसको बैन भी कर दिया गया था एंटी डिफेक्शन एक्ट के थ्रू. ओके, political parties in India are categorized into two types: national level parties and state level parties. National parties are those that exist all over India. State और regional parties are limited to a single state only. देखिए इसमें टू टाइप्स की पार्टीज बताई गई हैं, नेशनल लेवल पार्टीज और स्टेट लेवल पार्टीज. नेशनल पार्टीज वो होती हैं जो ऑल ओवर इंडिया में हैं. स्टेट लेवल पार्टीज वो होती हैं जो लिमिटेडली स्टेट्स में ही हैं. ओके, सिंगल स्टेट में हैं. नाउ policies and programs of major national parties of India. The Bharatiya Janata Party, the BJP, created an independent status for itself after the 7th Lok Sabha elections 1980. In the general election of 1991, it won the second largest number of seats and formed a strong opposition. In 1996, the BJP secured the largest number of seats along with allies. Okay, देखिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है जो कि 1980 में अपने 7th लोकसभा इलेक्शंस में आगे आई थी. ओके, इंडिपेंडेंट बनी थी, इन्होंने क्रिएट किया था 1980 में, और जनरल इलेक्शंस जो कि 1990 में हुआ था तब इन्होंने सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट से ये इलेक्शन जीता था. ओके, 1996 में बीजेपी ने सिक्योर किया था लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स. ओके, however, it could not prove its majority on the floor of the House and the government has a reign. In 1998 elections of BJP led 14 parties alliance
formed a coalition government at the center, and in 1999 it formed an alliance of 24 parties named a National Democratic Alliance and formed a coalition government at the center. BJP was removed from power of 2004 and 2009 elections, but it returned to power in 2014, 2019, 2024 with support from other parties elections. देखिए बीजेपी को 2004 में हटा दिया गया था, उनको पावर ऑफ इलेक्शंस नहीं दी गई थी, लेकिन वो वापस आई थी 2014 में, 19 में और 2024 में. ओके, नाउ भारतीय जनता पार्टी हैज़ अ लोटस फ्लावर एज इट्स इलेक्शन सिंबल. इनका इलेक्शन सिंबल क्या है? लोटस फ्लावर. ओके, BJP wants to build a strong and modern India by drawing inspiration from India's ancient culture and values. इंडिया की जो एंशियंट कल्चर्स और वैल्यूज़ है उसके थ्रू ये एक मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते हैं बीजेपी. ओके, एंड दीन दयाल उपाध्याय's आइडियाज़ ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदया कल्चरल नेशनलिज्म या फिर हिंदू तत्व जिसे हम बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है. ओके, इंडियन नेशनलहुड और पॉलिटिक्स के लिए. और यहाँ पे बताया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है जिसमें पीपल जो है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मतलब कहीं ना कहीं ये बोला गया है कश्मीर और इंडिया के जो हैं एक करने के लिए जितने भी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स है, रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट्स है, उन सबको ये उनकी कन्वर्जन्स को ये हटाना चाहते हैं. ओके, its support base increased substantially in the 1990s. Earlier limited to north and west and the urban areas, the party expanded its support in the south, east and the northeast and to rural areas. The Narendra Modi led 133p government abrogated Art 370 of the constitution that granted special status of Jammu and Kashmir. It was announced of August 5, 2019 by the Union Home Minister. ओके, पहले के टाइम में जो लिमिटेड नॉर्थ एंड वेस्ट में अर्बन एरियाज़ हुआ करते थे, वहाँ की जो पार्टी है वो एक्सपेंड हुई इनके सपोर्ट में आने से साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट और रूरल एरियाज़ में भी. ओके, आगे जाते हैं. इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस 2. Indian National Congress is the oldest political party in India. It was established in 1885 by A.O. Hume. It formed the first national government of the India. पहली नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सी थी? जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पार्टी है वो ये A.O. ह्यूम के थ्रू एस्टैब्लिश की गई थी 1885 में. ओके, देयर वाज अ स्प्लिट इन कांग्रेस इन 1969. कांग्रेस में स्प्लिट आया था 1969 में. द कांग्रेस वॉज रिमूव फ्रॉम द पावर इन 1977 एंड इट रिटर्न टू पावर इन 1980. अगेन इट लॉस्ट द इलेक्शंस इन 1989, 1996, 1998 एंड 1999. इट रिटर्न द पावर ऑफ 2004 and 2009 and formed a coalition government at the center. It was removed from the power in 2014. देखिए कितने ज़्यादा अप डाउन्स आए हैं कि कांग्रेस ने रिमूव हो गई थी 1977 में, उसके बाद रिटर्न हुई है 1980 में, उसके बाद इलेक्शंस हुए 1989 में, लोस्ट हुई 1996 में, 1998, 1999. ओके, फिर बैक टू पावर आई थी 2004 में, उसके बाद दोबारा रिमूव कर दी गई थी पावर से 2014 में. ओके, आम आदमी पार्टी formed on 26 November 2012 following the 2011 anti-corruption movement. The party was founded on the idea of accountability, clean administration, transparency and good governance. In the year after its formation, AAP emerged as the largest party in the Delhi Legislative Assembly election in 2015 and 2020 and formed the government. It also emerged as the third front of the politicals of Gujarat after 2022 Gujarat Legislative Assembly election. Presently, AAP governments are functioning Punjab and Delhi. In the Lok Sabha election held in 2019, it secured one seat in the Lok Sabha. आम आदमी पार्टी की यहाँ पे बात हो रही है. 26 नवंबर 2012 में ये बनाई गई थी. 2011 में एंटी करप्शन मूवमेंट इन्होंने चलाया था. पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस चलाने की कोशिश की थी. ओके, इस साल के बाद आम आदमी पार्टी एमर्ज हुई थी लार्जेस्ट पार्टी और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन हुए थे 2015 में और 2020 में और इनकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी. ओके, नाउ
आगे बढ़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी BSP formed in 1984 under the leadership of Kanshi Ram seeks to represent the secure power of the Bhujan Samaj, which includes the Dalits, Adivasis, OBCs and religious minorities. Draw inspiration from the ideas and teaching of Sahu Maharaj, Mahatma Phule, परिहार रामास्वामी निखेर एंड बाबा साहेब अम्बेडकर। ओके देखिए 1984 में ये लीडरशिप में आई थी कांसी राम की, तब फॉर्म हुई थी ये। ओके और इन्होंने रिप्रेजेंट किया और सिक्योर पावर रखी बहुजन समाज की। उसमें इंक्लूड किया इन्होंने दलित, आदिवासी, ओबीसीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को। ओके ये इंस्पिरेशन रही है, काफ़ी लोगों की इंस्पिरेशन ली है और टीचिंग्स इन्होंने लेके रखी है साहू महाराज, महात्मा फूले, परिहार रामास्वामी, नायकर और बाबा साहेब अम्बेडकर। ओके stands for the cause of securing the interest and welfare of the Dalits and the oppressed people. It has its main base in the state of Uttar Pradesh and substantial presence in neighboring states like Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttarakhand, Delhi and Punjab. Formed government in Uttar Pradesh several times with the support of different parties in the different times. देखिए अलग अलग स्टेट्स में इन्होंने अपने नेबरिंग स्टेट्स जो हैं इन्होंने अपना रुतबा वहाँ पे बनाया है। ओके जैसे कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब। ओके Now, Communist Party of India (CPI). The Communist Party was formed in 1925 in India. It believes in violent methods. During the Chinese invasion, the party got split into two. The leftist fiction supporting China was called Communist Party Marxist. The pro-Russia rightist fiction, also called the Communist Party of India. The CPI allied itself with Congress. Its election symbol is sickle and sheaf of paddy. Its policy and programs include the following. Okay देखिए CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब बनी थी? 1925 में। ओके ये वायलेंट मेथड्स में बिलीव करती है। चाइनीज इन्वेजन के टाइम पे ये दो भाग में स्प्लिट हो गई थी। ओके लेफ्टिस्ट फिक्शन चाइना को जो सपोर्ट करते थे जिनको कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट बोलते हैं। प्रो रशिया मतलब राइटिस्ट फिक्शन। ओके नाउ सीपीआई ने अलाइ किया खुद को किसके साथ? कांग्रेस के साथ। ओके नाउ इसके कुछ फॉलोइंग मेथड्स हैं वो नीचे बताए गए हैं, पहले ये आप देख लीजिए। यहाँ नीचे नेशनल पार्टीज और एंड देयर इलेक्शन सिंबल्स यहाँ पे सबके बताए गए हैं। ओके सो टू अपोज imperialism and capitalism, to nationalize all industries and remove economic and social disparities, to take over the wholesale trade of food, grains and other essential commodities, to take step in interest in Harijans, backward classes and minorities, to improve the conditions of the farm laborers and factory workers and preserve the cottage and small scale industries, to pull out the Commonwealth and establish close relations with Russia and socialist countries. Okay, देखिए क्या क्या करना चाहता? इम्पेरियलिज्म और कैपिटलिज्म को इम्पोज करना चाहता, ओपोज करना चाहता। ओके नेशनलाइज करना चाहता इंडस्ट्रीज को, इकोनॉमिक और सोशल डिस्पैरिटीज़ को रिमूव करना चाहते थे, होलसेल ट्रेड को आगे लेके जाना चाहते थे, स्टेप्स लेना चाहते थे इसमें कि ताकि जो लोअर कास्ट हैं, ओके हरिजन्स है, बैकवर्ड क्लासेस है, माइनॉरिटीज़ हैं, इनको आगे लेके जा चुके, इनका इंटरेस्ट बढ़ा सके। ओके इम्प्रूव करनी चाहिए थी काफ़ी सारी कंडीशंस जैसे कि फार्म लेबरर्स की, फैक्ट्री वर्कर्स की। ओके आगे बढ़ते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM। द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द CPIM इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या क्या इंक्लूड किया इन्होंने? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14, राइट टू वर्क टू बी मेड अ फंडामेंटल राइट, अलाउंस टू बी गिवन टू द अनएम्प्लॉयड, नेशनलिज्म of all foreign investments and all monopolies, foreign trade to be brought under the public undertaking, distribution of the land of big landlords among landless workers, all possible help for farmers. देखिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द एज ऑफ 14 की उम्र तक फ्री एजुकेशन देनी है उन्हें, ठीक है। राइट टू वर्क देना है, फंडामेंटल राइट्स उन्हें देने हैं। ओके नेशनलिज्म, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, मोनोपोलीज हैं, उनको नेशनलाइज करना है। ओके डिस्ट्रीब्यूट करना है लैंडलॉर्ड्स को लैंड को, ओके जो लैंडलेस वर्कर्स हैं उनमें। नाउ मिनिमम वेजेस फॉर द वर्कर्स, जो काम करने वाले हैं उनको मिनिमम वेजेस देने हैं। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं।
resist the policy of imperialism and to establish close cooperation with the socialist countries. Socialist countries के साथ close cooperation establish कराना है. Major regional political parties. In some states, regional parties have been in power for a long time. The rationale behind the emergence of regional parties is that India is vast country with geographical, cultural and ethnic diversities. देखिए कुछ states ऐसे हैं जहाँ पे regional parties पावर में रही है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम पर, ओके. और इन रीजनल पार्टीज़, क्योंकि इंडिया एक बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री है, क्योंकि इसके जोग्राफिकल, कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए ये ज़्यादा टाइम तक पावर में रही है. द नीड्स and aspirations of one region differ from the other. The national parties do not attach much importance to regional feelings. The regional parties can better understand and serve the local feelings and problems. देखिए जो नीड है, एस्पिरेशंस हैं, ओके, वो डिफ़र करती है दूसरों से, ओके. जो नेशनल पार्टीज़ हैं वो अटैच नहीं होती ज़्यादातर और ना ही इम्पोर्टेंस या फीलिंग्स शो करती हैं रीजनल्स, ठीक है. और नेशनल पार्टीज जो हैं वो अच्छे से समझ सकती हैं लोकल फीलिंग्स और प्रॉब्लम्स, ओके. द इम्पोर्टेंट रीजनल पार्टीज इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस JKNC इन जम्मू एंड कश्मीर, तेलुगु देशम पार्टी TDP of Andhra Pradesh and Telangana, Assam Gana Parishad AGP of Assam, Shiromani Akali Dal SAD of Punjab, Dravida Munnetra Kazhagam DMK of Tamil Nadu and Puducherry, All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam AIA DMK of Tamil Nadu and Puducherry, Haryana Janhit Congress Party HJC of Haryana, इंडियन नेशनल लोक दल INLD ऑफ हरियाणा, ओके. देखिए ये इन सबको, ये सारी पार्टीज़ हैं, ओके. ये सारी इंपॉर्टेंट रीजनल पार्टीज़ हैं जिनके नाम यहाँ पे बताए गए हैं, 8 पार्टीज़, ओके. आगे बढ़ते हैं, और भी हैं आगे. समाजवादी पार्टी SP ऑफ उत्तर प्रदेश, शिवसेना SS ऑफ महाराष्ट्र, आम आदमी पार्टी आप ऑफ दिल्ली एंड पंजाब, राष्ट्रीय जनता दल RJD ऑफ बिहार एंड झारखंड, भारत जनता दल BJU of Odisha. Thinking short. Why are symbols allocated to political parties or independent candidates? Discuss. ये आप खुद से करेंगे. Role of opposition parties. The MPs other than those of the ruling party from the official opposition, their role may be summed up as under: to provide political alternative to the ruling party, to expose the anti-people policies of the administration, to oppose other anti-people decisions of the government, formulation of public opinion, to create political awakening. ओके, देखिए क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या रोल है, जो सम अप है अंदर बताया गया है कि क्या क्या रोल होते हैं उनके, कि पॉलिटिकल अल्टरनेटिव रूलिंग पार्टी को प्रोवाइड कराना पड़ता है, ओके. एक्सपोज करना पड़ता है एंटी पीपल को, ठीक है. जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में एंटी पीपल हैं उनको एक्सपोज करना है, उनकी पॉलिसीज़ को एक्सपोज करना है, ओपोज करना है एंटी पीपल डिसीजंस को, ओके. पब्लिक ओपिनियन फॉर्मुलेट करना है, पॉलिटिकल अवेकनिंग कर रही है. और आगे है टू एक्सप्रेस पॉपुलर इमोशंस एंड अर्जेस, पॉपुलर इमोशन और अर्जेस जो हैं उनको एक्सप्रेस करना है. टू एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी एंड अपोज द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट विच आर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ मासेस. रिस्पॉन्सिबल ओपोजिशन पार्टी की तरह एक्ट करना है, ओके. नाउ coalition government. When a single political party fails to form its government owing to insufficient number of members in a parliament, it has seek to help and cooperation of other political parties to form the government. The government thus formed is called a coalition government. देखिए जब एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होती है गवर्नमेंट में खुद की सफिशिएंट नंबर ऑफ मेंबर्स के साथ पार्लियामेंट में और हेल्प करती है, कोऑपरेट करती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुद की गवर्नमेंट बनाने के लिए, उसको हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं. फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट ऑफ द सेंटर वाज फॉर्म्ड इन द 6 जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन 1977. द NDA गवर्नमेंट 1999 to 2004 हैज 24 parties. In 2004 and 2009 UPA government was also coalition formed by more than 10 parties. The BJP government formed in
2024 अंडर नरेंद्र मोदी इज ऑल्सो कोलिएशन गवर्नमेंट। ओके, देखिए जो पहली कोलिएशन सेंटर था वो फॉर्म हुआ था 6 जनरल इलेक्शन में 1977 में। एनडीए गवर्नमेंट 1999 से 2004 के बीच में 24 पार्टीज थी उसके अंडर। ओके, 2004 और 2009 में यूपीए गवर्नमेंट आई थी कोलिएशन में 10 पार्टीज के साथ, और बीजेपी गवर्नमेंट जो है 2024 में नरेंद्र मोदी के अंडर कोलिएशन में आई थी। ओके, कोलिएशन गवर्नमेंट अलाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस रीजनल पार्टीज। However, decision making takes more time than certain issue because of different views of different party members. At the state level, coalition government were formed after the 4th general elections in 1967. coalition government allow करती है representation अलग अलग regional parties की। okay? डिसीजन मेकिंग जो होता है वो सर्टेन इश्यूज पे होता है, क्योंकि डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, सब सारे जितने भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं सबके डिफरेंट व्यूज़ होते हैं। ओके, स्टेट लेवल पे कोलिएशन गवर्नमेंट जो है वो 4th जनरल इलेक्शंस में आई थी 1967 में। ओके, सो लेट्स गेट टू द एक्सरसाइजेस। टिक द करेक्ट आंसर। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दैट द राइट टू वोट शुड बी गिवन टू, किसे देना चाहिए राइट टू वोट? ऑल एडल्ट सिटीजन्स। ओके, जितने भी एडल्ट सिटीजन्स हैं उन्हें ये राइट मिलना चाहिए। बाकी के टिक मार्क्स आप खुद से करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। इट इज थ्रू डैश दैट पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्शंस के थ्रू वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स। ओनली lunatics, minors, bankrupts and criminals can cast the vote. फॉल्स, यही है जो वोट को कास्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये फॉल्स है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? देखिए, इसके थ्रू जो भी कोई एक पर्सन है, ओके, ही कैन एक्सप्लेन और एक्सप्रेस वंस व्यू, खुद की चॉइस वो बता सकता है, उसको बोलते हैं बाय गिविंग वोट। ओके, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ओपोजिशन इन अ डेमोक्रेसी, 5th पार्ट में। ओके, तो क्या रोल होता है ओपोजिशन का? ओपोजिशन का रोल होता है कि वो बताते हैं किस तरीके से सामने वाली पार्टी को वो ट्रांसपेरेंट करते हैं। ओके, एक तरीके से बताया जाता है कि वो कहाँ बेटर है, कहाँ बेस्ट है। तो ओपोजिशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, वो पीपल का इंटरेस्ट जानना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट भी उनमें पता होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। आउट ऑफ द बॉक्स। In a coalition government, decisions regarding the state of the country cannot be taken by any individual party. Why? How many members do you think are needed to be in the Lok Sabha to form a government with absolute majority and why? ये आप खुद से करेंगे।